ہم لوگ جو بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں، وہ مطلب کہ وہ انسان ہو یا فرشتے ہوں یا جو بھی، ہم لوگ مذاکرات کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ ہم نے کبھی دروازے بند نہیں کیے۔ ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو، کھلے دل سے ہو اور سیاسی فکر کے ساتھ ہو۔ تلوار مت لٹکائیں ہمارے سروں کے اوپر۔ پولیٹیکل مسائل کا پولیٹیکل حل مستقل ڈھونڈنا بڑا لازم ہوتا ہے۔ کنڈیشن کسی نے نہیں لگائی نا، ہم نے لگائی، ان کی کسی اور کی طرف سے آئی ہے، وہ ہمارے مطالبات۔ پارٹی وجود میں آئی ہے تقریباً 28 سال ہو گئے، مجھے کوئی ایک جگہ کوئی دکھا دیں کہ انہوں نے کوئی مفاہمت کی بات کی ہو۔ 19ویں ترمیم سے اپنے آپ کو رہا کروایا، فیض حمید کو بچانے کے لیے مذاکرات کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے۔ میری عمران خان صاحب سے کل ملاقات ہوئی اور میں نے ان کو یہ پوچھا تو بڑے غصے میں تھے وہ، اور انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، ہم کسی سے بھیک نہیں مانگ رہے، ہم کسی سے ریکویسٹ نہیں کر رہے مذاکرات کریں، ہم نے تو صرف ایک ہمارے خلاف الزام یہ لگایا جاتا تھا کہ آپ نے مذاکرات یا بات چیت کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، تو ہم نے صرف وہ دروازے کھولے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں اس بات کی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ کوئی مذاکرات چل رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر مذاکرات چل رہے ہیں، اور گورنمنٹ اور تحریک انصاف جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ گئی ہے۔ کیا ایسے کوئی مذاکرات چل رہے ہیں؟ اور ایسے اگر کوئی مذاکرات چل رہے ہیں تو ان میں کتنی سنجیدگی ہے؟ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کے پاس، خاص طور پر حکومت کے پاس، تحریک انصاف کو آفر کرنے کے لیے کیا موجود ہے؟ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ غیر مشروط مذاکرات ہیں، تو ایسے مذاکرات کہاں ہو رہے ہیں؟ کیا کب تک یہ چلتے رہیں گے مذاکرات، اور ان کا مستقبل پھر کیا بنے گا؟ یا بہت سارے معاملات میں وہی نتیجہ نکلے گا 0/0، یا کوئی بات آگے بھی بڑھے گی؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے امپاور کیا ہے کمیٹی کو، اور اسی لیے کیا تھا، ڈی چوک کے بعد ہی کیا تھا۔ میں خود جب 5 تاریخ کو گیا تھا تو انہوں نے براہ راست مجھے نام بتائے اور اناؤنس کیے، یہ نیگوشیشنز کمیٹی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود بنائی ہے اور مینڈیٹ خود دی ہے۔ ان سے بات نہیں کرنی، پیپلز پارٹی سے بات نہیں کرنی، یہ ان کا ایک نقطۂ نظر رہا ہے۔ تو میں تو سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ پہلے وہ یہ سرٹیفکیٹ جاری کریں کہ آیا ہم اب بھی چور ہیں یا نہیں ہیں، کیا ہم اب بھی ڈاکو ہیں یا نہیں ہیں، یا انہوں نے اپنے نقطۂ نظر بدل لیا ہے کہ چوروں سے ہاتھ ملانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جب وقت پڑے، جب مشکل آ جائے، جب حالات ناسازگار ہو جائیں تو ڈاکو سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ سینئر اینکر پرسن ہیں منیف فاروق صاحب، ان کے پاس چلتے ہیں، انہیں سے سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے جو حالات ہیں وہ کیسے اسے ان کو دیکھ رہے ہیں یا کیسے پینٹ کرتے ہیں، کیا کیا ہے ان کے پاس بتانے کے لیے، انہیں کے پاس چلتے ہیں۔ آپ کے کچھ میں انٹرویوز بھی سن رہا تھا، آپ کے کچھ ویلاگز بھی، ان میں آپ فرما رہے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے ان کی جگہ تبدیل کی جائے۔ ممکن ہے کچھ لوگ اسپیکولیٹ کر بھی رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ بھی رہے ہیں، کچھ انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، کچھ ویسے افواہوں کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی بنی گالا ہاؤس اریسٹ ٹائپ کوئی اس طرح کا ماڈل گورنمنٹ نے کبھی سوچا ہو۔ کیا گورنمنٹ کے ٹیبل پہ کون کون سے کارڈز پڑے ہیں اس چیز کو لے کے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بڑی کلیئر بتا دوں کہ گورنمنٹ کی بیسس پہ گورنمنٹ کے پاس نہ ہی کسی ہائی لیول انگیجمنٹ کی اپروول پرائم منسٹر نے دی، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کلیئر کٹ بتایا گیا ہے پاکستان کی حکومت کو کہ جی کوئی بھی پولیٹیکل ڈائیلاگ انگیجمنٹ اگر کوئی ہے یا اگر کوئی ہوگی تو وہ گورنمنٹ کرے گی۔ پاکستان کی فوج بی اٹ تحریک انصاف یا کوئی اور ان سے ڈائریکٹ نیگوشیشن نہیں کرے گی کسی معاملے پر۔ اچھا چلیے، یہ تو ایک براڈر بات ہے نا، لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا جو 7 مئی 2024 کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی، اس پریس بریفنگ میں ان سے آپ کو یاد ہوگا وہ بڑا، اس میں انہوں نے 2 باتیں ان سے پوچھی گئیں۔ ایک یہ ڈائیلاگ کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ جی جو انتشاری دوبارہ بات وہ انتشاری ٹولے کی انہوں نے کی کہ اگر وہ کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھیں کہ کوئی بھول جائے گا تو نہیں بھولے گا، اور اگر کوئی ڈائیلاگ کو بات ہوگی تو وہ سیاسی جماعتیں کریں گی۔ ایک دوسرا بات تھی عمران خان صاحب کے، یا ان سے جب پوچھا گیا کہ جی تحریک انصاف کے کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا یا فوج کی تحویل میں دیا جائے گا، تو اس کا جواب ڈی جی آئی ایس پی آر نے دیا بڑا کلیئر، اور وہ الفاظ کچھ یوں تھے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو کہ پاکستان آرمی ایکٹ کے تابع ہو اور اس کو کوئی سیاسی عنصر یا کوئی سیاسی شخصیت اس کو استعمال کرے اپنے فوج کے اندر کچھ کرنے کے لیے، تو پھر قانون اپنا راستہ لے گا۔ یہ میرے تمام ان
नुक्तों को जो कि मुझे बहैसियत सहाफ़ी नज़र आए और कुछ इन्फॉर्मेशन, बल्कि मेजर इन्फॉर्मेशन थी कि ये हो सकता है कि इमरान खान साहब का मामला मिलिट्री कोर्ट में जाने की कोई सफ़बंदी हो, कोई कोशिश हो, वो पाती है नहीं हो पाती, लेकिन ये इंटेंट मुझे पता लग गया था 5-6 महीने पहले कि इंटेंट ज़रूर मौजूद है। हो पाता है ये नहीं हो पाता, दैट्स अ मिलियन डॉलर। हमारी मीटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी। यह अपोजिशन की बड़ी जमात है। बड़ी जमात को इतने बड़े एक आइनी तरमीम के मराहल से लाताल्लुक़ नहीं रखा जा सकता। आप अगर चाहते तो 26वीं आइनी तरमीम पे रास्ता रोक देते, कोई बंद बांध देते, लेकिन शायद मौलाना साहब और आप, चूँकि मौलाना को डील करने का सारा टास्क था आपके पास, और ये टास्क जाना था बेसिकली मौलाना साहब को कंटेनर तक चढ़ाने तक। मैंने जो कुछ किया है, मैंने इमरान खान की इंस्ट्रक्शन भी किया। मौलाना साहब के साथ हमारी जितनी भी लीगल टीम थी, सब जो है ना इसमें ऑन बोर्ड थे। हमने उनको अपना वो भी दे दिया, जो जिस चीज़ को हम चाह रहे थे कि ये ना हो। हम काजी फाजी साहब को किसी पर नहीं चाहते थे, तो उसमें उन्होंने हेल्प की। बाकी चूंकि उसकी अपनी पार्टी है, अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो अपने उसको देखेगा, लेकिन हमने अपोजिशन पार्टी में उनके साथ इंगेज किया और कुछ आदाब हमने हासिल की। मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, और सीनियर तरीन हैं इस वक्त। उनके पास चलते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि अभी सूरत हाल किस तरफ जाएगी, हालात पलटा खाएंगे या स्टेटस को रहेगा, मौलाना फजलुर रहमान या बानी PTI या तहरीक इंसाफ, ये मुज़ाकरात या डायलॉग, इसके नतीजे में क्या निकलेगा, क्या बनेगा? मौलाना साहब तो चलें, ये जो भी हलचल चल रही है, एक दफ़ा तहरीक इंसाफ ने बड़ी कोशिश की थी कि मौलाना साहब को ये अपने साथ नत्थी करें और किसी तरीके से ये कंटेनर लेके इधर आ जाएं। वो ख्वाब पाया तकमील तक ना पहुंच सका। पूछने का मतलब ये है कि कोई हलचल, कोई तहरीक, कोई ऐसी चीज़ें, या ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज आपकी दानिश में हो गई हैं, सब अब रावी चैन लिख रहा है, या आप समझते हैं कि कुछ है, कोई शरर बाकी है, कुछ बचा है? मौलाना फजलुर रहमान जो है वो मुक्तदी नहीं हैं, वो मुज्तहिद हैं, वो इमाम हैं। तो आप उनको इमामत करा लें उनसे, उनको मुक्तदी बना के तो आप नहीं बैठा सकते ना, अपने पीछे तो खड़ा नहीं कर सकते। आपकी बात से ये समझ आई मुझे कि इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ कहीं कोई ऐसा गलत पत्ता खेल बैठी थी उस वक़्त कि इमामत देने में शायद वो नाला थे या कुछ। नहीं, देखें, असल आप मामला देखें कि तहरीक इंसाफ हो या मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, अगर वो समझे कोई कि वो मौलाना को अपने पीछे चलाएंगे तो मौलाना क्यों चलेंगे? नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। दुरुस्त फरमा रहे। हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद जो थे, जब 1970 का इंतखाब हुआ तो उस वक्त नैप थी और सूबा सदरत था जो KP के है, और खान अब्दुल क़य्यूम खां की मुस्लिम लीग थी। तो दोनों के दरमियान जमीयतुल उलमा इस्लाम जो थी वो तीसरी ताकत थी, जिसके साथ मिल जाती उसकी हुकूमत बन जाती। उन्होंने कहा, शर्त लगा दी कि वज़ारत आला हमारी होगी। तो खान अब्दुल क़य्यूम खान इस दोम में थे कि भाई ये तो नैब से तो इनकी मफामत हो नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि ये जो वज़ारत आला है, ये कोई 22 नुकात जो उलमा के हैं बड़े मशहूर, दस्तूर साजी के लिए पेश किए थे, उनका कोई 23वां नुक्ता ईजाद कर लिया आपने। और उधर अब्दुल वली ख़ान जो उस वक्त बड़ी कंपेन बड़ी चलाई इन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम के ख़िलाफ़, और कहा कि हमारे टुकड़ों पे पलने वाला मुल्ला हम पर हुकूमत का ख्वाब देख रहा। और जब वो उनके सामने चॉइस आई, उन्होंने कहा हम तो नमाज भी मुफ्ती साहब के पीछे पढ़ते हैं, हुकूमत भी उनके पीछे बनाएंगे। उनको फ़ौरन पेशकश कर दी। तो मौलाना मुफ्ती महमूद वज़ीर आला हो गए सूबा सरहद के। तो देखिए, मौलाना जो हैं वो उनके बेटे हैं, मौलाना फजलुर रहमान PNA के कायद जो थे वो थे, सदर वो थे। मौलाना जो हैं वो अपनी बात करेंगे, अपना मामला करेंगे, उनका उल्लू अपना है, दूसरों का उल्लू अपना है। उनको क्या ज़रूरत है दूसरों का उल्लू सीधा करें?
मीडिया के ऊपर 2 दिनों से काफ़ी ये बातें चल रही है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो मैं सख्ती से तरदीद करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान अब तक किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। हुकूमत को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि तहरीक इंसाफ ने 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तारीख का ऐलान किया है और वो ऐलान अब तक बरकरार है। तो हुकूमत अगर मुज़ाकरात नहीं करती तो फिर सिविल नाफरमानी का भी आगाज़ हो जाएगा और उसका आगाज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से होगा। इस तरह तो मुज़ाकरात नहीं होते कि पहले शरायत, इसका मतलब कि शरायत भी उनकी बड़ी अजीबोगरीब है। और सिविल नाफरमानी की तारीख भी उन्होंने एक दफ़ा पहले भी 2014 में की थी और इस दफ़ा तो मेरा हाल है बस ऐसी बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। ना काल वो देंगे, अगर देंगे तो बिल्कुल फ्लॉप ही होंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर नाम है अज़हर सदीक साहब, कानूनी माहिर हैं, बड़े मारूफ हैं। वो इन हालात को कैसे बेसिकली देख रहे हैं और उनकी दानिश में तहरीक इंसाफ क्या गलतियां कर रही है, क्योंकि वो क्रिटिक हैं आजकल। वो मानते हैं कि तहरीक इंसाफ बहुत बड़े पैमाने पर ऐसी सियासी मिस्टेक्स कर रही है जिसका खमियाजा फिर तहरीक इंसाफ को नहीं बानी PTI को भुगतना पड़ रहा है। वो क्या मिस्टेक्स हैं, अज़हर सदीक साहब के पास ही चलते हैं। आप जो मौजूदा तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं, नाम लिए बगैर, क्योंकि आप पॉलिटिकल बात कर रहे हैं और मैं भी किसी को सिंगल आउट करने नहीं आपके पास हाजिर हुआ, जितने भी लोग पॉलिटिकल डायलॉग कर रहे हैं या बात कर रहे हैं या मैकेनिज़्म को लेके चल रहे हैं, आपको इनकी तर्ज सियासत से इसका मतलब बहुत बड़ा इख्तलाफ है। देखिए, मैं बताऊं आपको, बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना सियासी रंगत नहीं छोड़नी चाहिए थी। सियासी रंगत से मेरा क्या मुराद है, यानी मैं ना इससे मैं अगली बात करके फिर वापस आता हूँ। जब इलेक्शन हो गए पाकिस्तान तहरीक, तो मैंने उस वक्त कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत करनी चाहिए। आप बुशरा बीबी के पास भी गए थे, ठीक है ना जी, पैगाम लेके गए। देखे ना, मैंने यहाँ बैठ आज तक ये नहीं पता वो किसका पैगाम था। नहीं, वो ये छोड़ें, वो ये चले मेरी ज़ाती सोच थी, मैं ये बता दूँ आपको। मैं आज भी मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, उल्टा क्या हुआ कि वो मेरी सीट के लाले पड़ गए। अब छोड़ें इस बात को कि जो बातें मैं कर रहा था ना, जो बातें मैं चाह रहा था कि क्या होना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, देखिए वजह क्या है। नहीं, आपको टिकट इस वजह से नहीं दिया, भाई ये छोड़ देना इन चीज़ों को। आपने उधर जाके ओ यार अपने हिस्से का कलमा हक कह दिया था। नहीं, आप इन बातों में नहीं जाना आपने। मैं नहीं बातों में ना मैं इलेक्शन लड़ने के इंटरेस्टेड था। मुझे कहा गया, मैंने मुल्क में आना था, मैंने टिकट भी इसलिए, मैंने नॉमिनेशन पेपर भी इसलिए जमा कराए थे। बाखुदा मुझे कोई शौक़ नहीं था इलेक्शन लड़ने का, ना है मुझे अब भी। मैं पाकिस्तान के तर्ज सियासत से मैं इत्तेफाक नहीं करता। मैं जितना काम या पब्लिक इंटरेस्ट में यहाँ रह के कर सकता हूँ, मैं सियासत में रह के शायद नहीं कर सकता। मैं TV चैनल पर जाकर डिफेंड तो कर लूँगा, लेकिन मैं प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकता। आपका निज़ाम ऐसा है। मैं उस वक्त भी इस बात का कायल था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है ना पीपल्स पार्टी के साथ बैठना चाहिए, लेकिन जो कि इमरान खान हाई मॉरल ग्राउंड पे हैं, अब उनको कन्विंस करना ये मेरे बस का काम नहीं, ये इन सियासी लोगों का काम था कि इमरान खान साहब से बात करते। अब अभी भी देखें ना, आज हम कहाँ खड़े हैं, वहीं खड़े हैं ना, जो आप बात कर रहे हैं ना, आज जो बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल डायलॉग करें, इस पॉलिटिकल डायलॉग करने का तरीका मुख्तलिफ था। आप वफ्द एक बनाते, आपको एहतसाब का मशीर लगाने लगे थे, आप क्या मुख्तलिफ बातें आज कर रहे हैं। मेरी बात सुने, आप आज मुख्तलिफ अज़हर सदीक बने हुए हैं। फहद देखें, आज बात आपने छेड़ ली ऐसे, आपने सियासी गुफ्तगू मेरे से आज कर रहे हैं। आप सचिन तेंदुलकर की तरह फ्रंट ड्राइव खेलते जा रहे हैं। मैं बताऊं आपको, आज स्ट्रेट ड्राइव, आप मुझे सियासी बातें कर रहे हैं ना, तो मैं सियासी जवाब दूंगा। मैं सिर्फ यही बता रहा हूं कि इमरान खान के करीब सिंसियर लोगों को नहीं रहने दिया जाता। अब ये ज़हन में रख लें बात, वो चाहे पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं या बाहर हैं, जो कोई मर्जी कह दे, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने देखा है, यानी यहाँ बैठकर इसको चले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें हल्का सा कि कौन लोग थे नाम लिए बगैर जो इस तरह के मशवरे देते थे, तो अब वो नहीं रहे, को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। उनमें से कई तो चले गए ना, आप यही तो देखे ना, उनमें से कई कहाँ हैं अब, वो सारे वो जिनके लोग थे चले गए। यानी उनके जहां तारें हिलती थी या जहां कहीं ताल्लुकात थे, उनमें से कई लोग तो ऐसे थे जो बिल्कुल इतने कुर्बत में थे, लेकिन फर्क इतना है कि हमने एक ऑनेस्ट लीडर के साथ है, एक ईमानदार आदमी के साथ है, इमरान खान इसका नाम है। हम आपसे वादा करते हैं कि 20 दिन में आप इमरान खान को छोड़ देंगे। ये इनके साथ मुज़ाकरात नहीं थे,
ये उनके पैनिक में उन्होंने उनको रोकने के लिए कि आगे ना जाओ, उन्होंने ये ऑफ़र भेजी थी इमरान खान को जेल के अंदर। जब तहरीक इंसाफ डी चौक के लिए आ रही थी धरना देने के लिए, उस धरने पे बहुत सारी तनकीद हुई, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बात की, बहुत सारे लोग कह रहे थे इनके पास कंबल तक नहीं थे, इनके पास वो ऑडियो सिस्टम नहीं था और कोई ऐसे मामला। लेकिन असल बात ये है कि कहा यह गया कि बानी पीटीआई को ये कहा गया था कि आपको हम छोड़ देंगे 20 दिन के अंदर, रिहाई दे देंगे तो आप संगजानी रुकें या इसे कॉल ऑफ कर दें। ये बात हलीमा साहिबा ने की है। इस बात में कितनी सदाकत है और जो फैसला साजों के जहन पढ़ने वाले लोग हैं वो इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? एस्टेब्लिशमेंट ने ऑफ़र किया था इमरान खान को कि आप धरना वापस ले जाएं तो हम 20 दिन में 22 दिन में या कुछ टाइम में आपको यहाँ से निकाल देते हैं। इस तरह की बातें क्यों स्पेकुलेट हो रही हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें जहन में रखिए कि जब एक तो जनरली भी जहन में रखें, जब इस तरह की कोई चीज़ हो रही हो ना, चाहे वो तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च लेकर आ रही हो, मौलाना लाएँ, TLP लाए, कोई और आए, तो हुकूमत की तरफ से या इस्टेब्लिशमेंट के किसी नुमाइंदे की तरफ से हमारे सामने तो अब एक ज़िंदा मिसाल है ना कि माशाल्लाह मोहसिन नकवी साहब खुद इस्टेब्लिशमेंट है, तो उनका राब्ता तो गंडापुर साहब से था। और वो बात ये होती है कि अच्छा आप आ रहे हैं, अच्छा आना है यार, क्यों आ रहे हैं, वो बेलारूस के सदर आए हुए हैं, क्या कर रहे हैं, अच्छा अभी ना आए, अच्छा आना है तो फिर चले उधर संजानी आ जाए, अच्छा इसके आपने आगे नहीं आना, ये नहीं करना, बस ये, मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं। दूसरा, आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, हुकूमत डेटरेंस क्रिएट करती है, भड़क हमेशा ये लगाई जाती है कि आपको यहाँ आने नहीं देंगे, लेकिन जाहिर बात है आपने लोगों को मारना या गोलियाँ चलानी तो नहीं होती ना कि जी अगर कोई अटक आ गया। वैसे तो अगर रियासत अपनी आई पे आ जाए तो आप घर से नहीं निकल सकते भाई, मैं और आप घर से नहीं निकल सकते, या फॉर दैट मैटर कोई भी नहीं निकल सकता, लेकिन आपने एक डेटरेंस क्रिएट करनी होती है कि यार तोड़ा जाए लोगों का ज़रा, यानी कि उनको उनका जो फ्लो आ रहा है उसको ज़रा ब्रेक किया जाए, स्पीड आहिस्ता करवाई जाए, जो कि गवर्नमेंट करवाती है। अब इस दफ़ा शायद ये भी हुआ कि जी लोग कुछ आए, अच्छा जी आ भी गए इस्लामाबाद में, लेकिन ये जो सारा बात थी ना, अब मैं आपको विद अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ माई इंफॉर्मेशन बहसीत एक सहाफ़ी मैं याद कर सकता हूँ कि ना हुकूमत ना इस्टेब्लिशमेंट दोनों की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं ऑफ़र की गई तहरीक इंसाफ को कि आप ये कर दें तो हम इमरान खान साहब को रिहा कर देंगे 15 दिन बाद, 20 दिन बाद। देखिए इशू क्या है, इशू ये है कि हुकूमतें बड़ी तेज़ होती हैं, कोई भी हुकूमत हो, चाहे ये वाली हो, इससे पहले इसके बाद आने वाली, आप ना एक लॉलीपॉप, एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं मुज़ाकरात का या बात का, क्या अच्छा चलें यार हालात बेहतर हो जाएंगे, ये कर लेते हैं, वो कर लेते, यार आप माहौल अच्छा करें, देखिए उससे फिर ये भी हो सकता है, लेकिन कॉन्क्रीट बात कोई नहीं होती। मोहसिन नकवी साहब क्योंकि वो ऑब्वियसली बहुत अथॉरिटी है उनके पास, उनको पता था कि ना ऐसी कोई बात होनी है, ना इमरान खान की रिहाई की कोई बात सिरे से है। सो ये जो तमाम बातें हो रही हैं जी कि वो हाँ एस्टेब्लिशमेंट ने एनवायरनमेंट इनेबल की, 1 मुलाकात, 2 मुलाकात, गंडापुर साहब मिल रहे हैं, 24 से पहले 2 मुलाकातें हो रही हैं, गौर खान साहब में, वो इसलिए कि आप इस चीज़ को क्रिएट करवाएं कि यार किसी तरह ये एहतजाज मौखर हो जाए या रुक जाए। क्योंकि मैंने आपको शायद पहले भी अर्ज़ किया था कि कोई भी हुकूमत हो, जितनी मर्जी ताकतवर हो, वो कभी नहीं चाहती कि लोग सड़कों पे आए, वो कभी नहीं चाहती कि एक अजीब सा रुकस क्रिएट हो जाए और एक अजीब से सवाल लोग कर रहे हो कि ये क्या हो रहा है आपके वफाकी दारुल हुकूमत में, ये क्या हो रहा है, लोग क्यों बाहर निकले हुए हैं फलां। सो वो एक मेरे ख्याल में एक एक्सरसाइज थी, लेकिन अगर आप उसे ये समझें कि कोई सब्सटेंशियल बात की गई तो यकीन माने ऐसी कोई चीज़ नहीं। ठीक, अगर होती तो नज़र आए। हलीमा खान साहिबा ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि इमरान खान को हम 20 दिन में रिहा कर देंगे, आप धरना वापस ले जाएं, इस तरह की बातें। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने तरदीद की, इस तरह की ऑफर्स हो सकती हैं, वैसे हो जाती हैं कभी, या आपको लगता है कि कभी हो सकती होंगी? क्योंकि उन्होंने कहा होगा कि आप वहाँ बैठ जाएं जाके, उसके बाद इस पर बात कर लेंगे रिहाई पर। रिहाई तो होनी ही होती है ना बिलाखिर, कोई ये शाम थोड़ी है कि 30-30 साल के बाद बंदा जेल से बरामद हो रहा है ना। ये पाकिस्तान है, यहाँ अदालतें हैं, यहाँ कानून है, यहाँ एक दस्तूर है, उसके ताबे मामला चलते हैं। तो उन्होंने कहा होगा कि फिर उसके बाद बात कर लेंगे रिहाई के मामले में। लेकिन ये कि अगर तो रिहाई लाजमन हो जाएगी तो फिर तो PTI वहाँ से पूछना चाहिए कि भाई आपने क्यों नहीं उनको बाहर आने दिया। तहरीक इंसाफ जो है वो मौलाना साहब को वो रोल ना दे सकी जिस रोल को, जिसका खाका, जिसके खाके में रंग तहरीक इंसाफ ने भरे थे।
بعد پھر اور طرف چلے گئی, پھر 26ویں ترمیم کی طرف چلے گئی, پھر مولانا صاحب کو 26ویں ترمیم میں گورنمنٹ کی بات ماننی پڑی اور بات پھر آگے بڑھ گئی. لیکن وہ جو تحریک انصاف سوچا کرتی تھی وہ آج بھی خواب تحریک انصاف کی آنکھوں میں بالکل زندہ و جاوید ہیں. مولانا صاحب پہ 26ویں ترمیم کے معاملے میں تحریک انصاف اعتبار نہ کر سکی ایک لیول تک سے آگے, اور اکثر وہ بڑی اہم بات ہے, بڑی ریپیٹ ہم نے کی کہ جو آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان کو بندوق کا تحفہ دیا تھا, مولانا فضل الرحمان نے اس بندوق سے تحریک انصاف کا شکار کیا. رائٹ سر؟ دیکھیے اب مولانا صاحب کے ساتھ آپ کیسے چلیں گے؟ دیکھیے ایک بات بتاؤں آپ کو, اب مولانا کو ضرورت ہے, اب مولانا کو ہماری ضرورت ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں مولانا کو اب ہماری ضرورت ہے. اب وہ جو ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی جماعت سے مل کر ایک ہوا بنا دی ہے نا, اب وہ بڑھنا شروع ہوا ہے. مولانا صاحب کی ضرورت جو ہی ختم ہوئی آپ پھر سڑک پہ پڑے ہوں گے. نہیں, سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ نہیں ہے. اس ملک میں میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ پولیٹیکل ریلیونس رہنے کے لیے کوئی ایسی اسٹریٹجی مرتب دیجیے کہ ضروریات سے نکلیے. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, وجہ یہ ہے کہ اس وقت حالات انہوں نے ایسے کر دیے آپ کو, ابھی تک تو گراؤنڈ پہ انہوں نے آپ کو احتجاج کرنے ہی نہیں دی ہے. ہمیں جو باتیں کہہ رہے ہیں نا غلط کہہ رہا ہے اس بات کو. کون سے احتجاج کرنے دیا انہوں نے؟ آپ آ جائیں 2022 میں آ جائیں 25 مئی والے دن نکلنے دیا, ڈنڈے مار مار کے زخمی کر کے گاڑیاں توڑ کے کیا کیا تھا. اور میں بڑا لیڈر عمران خان کو اس لیے مانتا ہوں کہ میں نے نا, مجھے یاد ہے جب ان دنوں 2022 مارچ میں عمران خان صاحب کو جب میں نے ایک سجیشن دی کہ میں کہا جی بلاول بھٹو کو یہاں پاکستان اسلام آباد نہ آنے دیں, انہیں لانگ مارچ نہ کرنے دیں. آپ نے کہا؟ یس میں نے کہا لانگ مارچ نہ کرنے دیں. اس کے لیے بغاوت کے پرچے جو ہمارے خلاف ہو رہے ہیں آج, یہ اسٹریٹجی جو کہ پرانی ہے نا, یہ نئی تو ہے ہی نہیں, یہ پرانی اسٹریٹجی ہے. اور اگر آپ یہ کرتے تو شاید آپ لازمہ دیکھتے. وجہ کی تھی اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ نہیں تھی. دیکھو نا یہ سارے جتنے بھی کام ہیں اب حالات اس طرح ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کامیاب بنواتی ہے. یعنی اب عمران خان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ ہے نا, پاکستان تحریک انصاف کے خلاف دہشت گردی کے پرچے ہو رہے ہیں, بغاوت کے پرچے ہو رہے ہیں, ایسے بٹ رہی ہے بغاوت کی بات ہی کوئی نہیں ہے. آپ کو اگر پولیٹیکلی لے کر چلنا ہے نا, میں گھوم کے واپس آتا ہوں تو حکومت کے لیے دیکھیں نا ڈائیلاگ کے حوالے سے حکومت نے کب سنسیئرٹی دکھائی. تو آپ نے جب بلاول صاحب کے خلاف کریک ڈاؤن کا مشورہ دیا تو پھر عمران خان صاحب نے کیا کہا؟ بالکل اتفاق نہیں کیا. انہوں نے کہا میں ایسا کچھ کروں گا ہی نہیں. ہر ایک کو حق ہے احتجاج کا, وہ آنا چاہتے ہیں آئیں, انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. 3 لانگ مارچ ہوئے ہیں اس دور میں, بتا دیں اس طرح پرچے درج ہوئے ہیں 144 جس طرح بڑھتی پھر رہی ہے, جس طرح ڈیٹینشن آرڈر جاری ہوئے ہیں 2022 کے اندر 10,000, 2023 کے اندر 4,770. مجھے زبانی فکر یاد ہے نا کیونکہ میں نے چیلنج کیا ہوا ہے.